The topic we are going to start today is corticospinal tract. Before starting this topic, हम एक स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन देखते हैं जिसमें डिफरेंट ट्रैक्ट्स को एक्सप्लेन किया गया है. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे असेंडिंग ट्रैक्ट्स की. सो दीज आर द असेंडिंग ट्रैक्ट्स विच आर ऑन माई राइट साइड. These ascending tracts, what does these ascending tracts do? They carry the information from the periphery of the body to the brain. इस असेंडिंग ट्रैक्ट्स में जो पाथवेज इंक्लूड होते हैं, दोज आर dorsal column medial lemniscus pathway, the dorsal column medial lemniscus pathway, which includes the cuneate fasciculus and the gracile fasciculus. This is the cuneate fasciculus and this is the gracile fasciculus. Then comes the anterolateral spinothalamic tracts. This anterolateral spinothalamic tract में ये lateral spinothalamic tract होते हैं. This is the anterior spinothalamic tract. And the spinocerebellar tracts like the जिसके अंदर आता है anterior spinocerebellar tract और posterior spinocerebellar tracts. So these are the tracts, ascending tracts, which have been discussed in the previous videos. So you can find the link for these pathways in the description below. Now coming to the descending pathways. After ascending pathways, coming to the descending pathway, we see that what do the descending pathways do? These descending pathways carries the information from brain to the periphery of the body. So descending tracts के अंदर हम लोग मेनली दो तरह के descending tracts होते हैं. इसको broadly टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम लोग, pyramidal tracts and the extra pyramidal tracts. The pyramidal tracts, ये जो रेड कलर के ट्रैक्ट्स हैं वो descending pathway के ट्रैक्ट्स होते हैं. ये जो pyramidal tracts होते हैं इसके अंदर दो मेन pyramidal tracts होते हैं, lateral corticospinal tracts and the anterior corticospinal tracts. These are the lateral corticospinal tracts and these are the anterior corticospinal tracts. And then there comes the extra pyramidal tracts. Extra pyramidal tracts के अंदर आता है ruberospinal tracts. These are the ruberospinal tracts. Then reticulospinal tracts. These are the reticulospinal tracts. Then comes olivospinal tracts. These are the olivospinal tracts. And then the vestibulospinal tract. These are the vestibulospinal tracts. So इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे pyramidal tracts, that is those are also known as the corticospinal tracts. So pyramidal tracts या फिर corticospinal tracts को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग lateral और anterior corticospinal tracts को डिस्कस करेंगे. और जो extra pyramidal tracts है इसको हम लोग फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे. So coming to the corticospinal tract, जो corticospinal tract है इसको हम लोग different सब टॉपिक्स के थ्रू पढ़ेंगे. The different सब टॉपिक्स will be the different areas of the brain. Then we will discuss primary motor cortex, then we will discuss premotor area, then supplementary association area, then we will discuss the pathway, that is the main corticospinal pathway. And after that we will include a practice session. Practice session में हम लोग पढ़ेंगे frequently asked subjective questions, Q&A on PG entrance examination, that is question and answer on PG entrance examination, and clinical challenge question. So coming to the first subtopic, that is the different areas of the brain. डिफरेंट एरियाज ऑफ द ब्रेन में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे लोब्स ऑफ द ब्रेन. देयर आर टोटल 4 लोब्स ऑफ द cerebral cortex: the frontal lobe, the parietal lobe, the occipital lobe, and the temporal lobe. Frontal lobe and the parietal lobe. The frontal lobe and the parietal lobe is separated by a deep sulcus which is known as the central sulcus. The parietal lobe and the occipital lobe is separated by parieto-occipital sulcus. Here is a pre-occipital notch, and the temporal lobe and the frontal lobe is separated by a sylvian or a lateral sulcus. This is the sylvian or the lateral sulcus. We know that this is a brain stem, and brain stem के अंदर क्या क्या आता है? brain stem midbrain plus pons plus medulla oblongata is equal to brain stem. तो सबसे पहले हम लोग इस सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर डिफरेंट एरियाज, दैट इज सेंसरी एरियाज, एसोसिएशन एरियाज और मोटर एरियाज को समझते हैं. सो दिस इज अ डायग्राम इन विच ऑल द एरियाज आर मेंशन्ड. सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेंसरी एरिया, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं. सेंसरी एरियाज में हमें पता है कि ये प्राइमरी सोमेटो सेंसरी एरिया आता है, ये सेकेंडरी सोमेटो सेंसरी एरिया होता है, ये प्राइमरी विजुअल एरिया होता है और ये सेकेंडरी विजुअल एरिया होता है, जो कि ऑक्सीपिटल लोब में प्रेजेंट होता है और ये विजुअल इन्फॉर्मेशन को सेंस करने का काम करता है. ये प्राइमरी ऑडिटरी एरिया होता है और ये सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया होता है, जो कि ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन को सेंस करने का काम करता है. ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो हो जाती है वो लिंकअप होती है, इंटीग्रेट होती है एसोसिएशन एरिया में. ये जो एसोसिएशन एरिया प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर पार्ट में, उसको हम लोग कहते हैं पोस्टीरियर ऑक्सीपिटो टेम्पोरल एसोसिएशन एरिया. टोटल 3 एसोसिएशन एरियाज प्रेजेंट होते हैं. एक होता है पैराइटो ऑक्सीपिटो टेम्पोरल एसोसिएशन एरिया, द सेकंड वन इज द लिम्बिक एसोसिएशन एरिया, द सेकंड वन इज द लिम्बिक एसोसिएशन एरिया, दिस इज द लिम्बिक एसोसिएशन एरिया, एंड द थर्ड वन इज द प्री फ्रंटल एसोसिएशन एरिया और द एंटीरियर एसोसिएशन एरिया. ये जो इन्फॉर्मेशन होती है जो कि सेंसरी एरिया से आती हैं पैराइटो ऑक्सीपिटो टेम्पोरल एसोसिएशन एरिया में, जहाँ पे इन इन्फॉर्मेशन का लिंकिंग होता है या फिर इंटीग्रेशन होता है. और फिर ये जो यहाँ से इन्फॉर्मेशन होती है वो पहुँचती है लिम्बिक एसोसिएशन एरिया के थ्रू, जहाँ पे इमोशंस का इससे लिंकअप होता है और फिर वो इन्फॉर्मेशन पहुँचती है कहाँ पे? प्री फ्रंटल एसोसिएशन एरिया या फिर एंटीरियर एसोसिएशन एरिया में. यहाँ एंटीरियर एसोसिएशन एरिया में एक
डिसीजन लिया जाता है कि इस इन्फॉर्मेशन से क्या करना है हमें, फिर वो इन्फॉर्मेशन जाती है मोटर एरियाज में। टोटल 3 मेन मोटर एरियाज प्रेजेंट होते हैं हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। सबसे पहला जो होता है वो होता है प्राइमरी मोटर एरिया, दैट इज M1। द सेकंड एरिया इज द प्री मोटर एरिया, दिस इज द प्री मोटर एरिया, दिस व्हाइट एरिया इज द प्री मोटर एरिया, दिस इज द प्राइमरी मोटर एरिया, एंड दिस इज सप्लीमेंट्री एसोसिएशन एरिया और SMA। इसको हम लोग SMA भी कहते हैं, सप्लीमेंट्री एसोसिएशन एरिया। तो ये टोटल 3 मोटर एरियाज होती हैं जहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो होता है, जहाँ पे इन्फॉर्मेशन पहुँचता है। फिर इन मोटर एरिया से जो इन्फॉर्मेशन होता है वो नीचे की तरफ डिसेंडिंग ट्रैक्ट से ये नीचे की तरफ चला जाता है। अब हम लोग इन मोटर एरियाज को थोड़ी और डिटेल में समझेंगे। सो दीज आर द मोटर एरियाज। मोटर एरियाज में हमने कहा कि टोटल 3 मोटर एरियाज, इंपॉर्टेंट मोटर एरियाज जो होते हैं वो M1 दैट इज प्राइमरी मोटर एरिया हो जाता है, फिर ये प्री मोटर एरिया हो जाता है, और ये सप्लीमेंट्री एसोसिएशन एरिया हो जाता है। सोमेटोसेंसरी एरिया भी मोटर रिफ्लेक्स मोटर सप्लाई जो होता है वो करने में काम करता है। और सोमेटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया भी क्या होता है कि ये कुछ नर्व जो होता है वो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स में सप्लाई करता है। सो यहाँ से जो ये डिफरेंट एरियाज जो प्रेजेंट हो गए, दैट इज सप्लीमेंट्री एसोसिएशन एरिया, प्री मोटर एरिया, प्राइमरी मोटर एरिया, सोमेटोसेंसरी एरिया एंड सोमेटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया। इन सारे एरिया से क्या होते हैं कि नर्व्स जो होते हैं वो मिल करके एक डेफिनेट ट्रैक्ट्स बनाते हैं। ये जो डेफिनेट ट्रैक्ट बनाते हैं, इस ट्रैक्ट का नाम है कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। ये जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट होता है इसमें 31% ऑफ द फाइबर जो होते हैं वो M1 दैट इज प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स के होते हैं। यहाँ से 31% ऑफ द फाइबर्स आते हैं। 29% ऑफ द फाइबर जो होते हैं वो प्री मोटर कॉर्टेक्स एंड वो 29% ऑफ द जो फाइबर्स होते हैं वो प्री मोटर कॉर्टेक्स एंड सप्लीमेंट्री एसोसिएशन एरिया से आते हैं। मतलब 29% ऑफ द फाइबर एरिया जो फाइबर्स आएंगे वो प्री मोटर कॉर्टेक्स आएंगे और सप्लीमेंट्री एसोसिएशन एरिया से आएंगे। और 40% ऑफ द रिमेनिंग 40% ऑफ द फाइबर्स सोमेटोसेंसरी एरिया एंड पैराइटल लोब। दिस इज द सोमेटोसेंसरी एरिया एंड दिस इज द पैराइटल लोब, दैट इज विच इंक्लूड्स द पैराइटो ऑक्सीपिटो टेम्पोरल एसोसिएशन एरियाज। सो यहाँ से क्या होते हैं कि बाकी रिमेनिंग 40% ऑफ द फाइबर्स आते हैं। ये सारे फाइबर जो डिफरेंट एरिया से आ रहे हैं ये सारे मिलकर के क्या बनाते हैं, एक डिसेंडिंग पाथवे बनाते हैं। इसका नाम है कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। सो दिस इज द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। अब हमें थोड़ा ब्रॉडमैन्स एरिया के बारे में समझना होगा। हमें पता है कि सोमेटोसेंसरी एरिया जो था वो ब्रॉडमैन्स एरिया 3, 1 और 2 को इंक्लूड करता था। सोमेटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया जो होता था वो ब्रॉडमैन एरिया 5 और 7 को इंक्लूड करता है। प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स दैट इज M1 विच इंक्लूड्स ब्रॉडमैन एरिया 4, सप्लीमेंट्री एसोसिएशन एरिया which include the Broadman area 6. So this is the different Broadman's area। कुछ Broadman's area हम लोग को याद करना होगा। अब हम लोग कहते हैं कि ये सारे के सारे जो एरियाज होते हैं वो ये एक दूसरे में कैसे कनेक्टेड होते हैं, इनके बीच में इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग इस डायग्राम से इसको समझेंगे। इस डायग्राम में हम लोग देखेंगे कि ये एक ब्रेन का डायग्राम है। इस डायग्राम में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले क्या होता है कि जो भी ट्रैक्ट्स होते हैं ये सारे के सारे ये जो सबसे पहले डिफरेंट एरियाज हैं, सबसे पहले डिफरेंट एरियाज को हम लोग समझते हैं। ये था SMA दैट इज सप्लीमेंट्री एसोसिएशन एरिया, दिस वाज premotor cortex, this was primary motor cortex, this was somatosensory area and this was somatosensory association area। तो इन्फॉर्मेशन जो होती है वो सबसे पहले हमें पता था कि सबसे पहले सेंसरी एरियाज में पहुंचती है, उसके बाद एसोसिएशन एरियाज के थ्रू होते हुए एंटीरियर एसोसिएशन एरिया में पहुंचती है। एंटीरियर एसोसिएशन एरिया में जब हम लोग को समझ में आता है कि हमें करना क्या है और हम लोग का जब डिसीजन हो जाता है कि हमें ये करना है, तो फिर ये इन्फॉर्मेशन जो होती है वो डिफरेंट एरियाज में चली जाती है, डिफरेंट मोटर एरियाज में चली जाती है। मतलब ये सप्लीमेंट्री एसोसिएशन एरिया, प्री मोटर कॉर्टेक्स, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, सोमेटोसेंसरी एरिया और सोमेटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया, इन सब के अंदर ये इन्फॉर्मेशन जाएगी। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जाने के बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन बाई डायरेक्शनली जाएंगी बेसल गैंग्लिया और थैलेमस के पास। बेसल गैंग्लिया और थैलेमस में प्लानिंग एंड द प्रोग्रामिंग ऑफ द मूवमेंट्स होता है कि ये जो मूवमेंट्स होने हैं उसका डेफिनेट प्लानिंग और प्रोग्रामिंग और इनका इंटीग्रेशन की इस प्लान से ये मूवमेंट होना है, इनका प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग ऑफ द मूवमेंट जो होता है वो बेसल गैंग्लिया और थैलेमस के अंदर होता है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इन सारी एरिया से कहाँ पे आई, बेसल गैंग्लिया और थैलेमस में आई, जहाँ पे प्लानिंग एंड द प्रोग्रामिंग ऑफ द मूवमेंट हो गया। अब जब प्लानिंग एंड द प्रोग्रामिंग ऑफ द मूवमेंट होता है, साथ ही साथ ये जो बेसल गैंग्लिया और थैलेमस होता है ये प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन रिसीव करने का काम करती है सेरेबेलम से। तो सेरेबेलम से इसने प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन लिया कि मतलब जो भी हमें मूवमेंट करना है तो उस मूवमेंट की लोकेशन क्या है, उस मूवमेंट की पोजीशन क्या है, इसे बताती है
जाती है सेरेबेलम थ्रू द प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन। अब बेसल गैंग्लिया और थैलेमस ने पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग कर ली मूवमेंट्स की, पूरा का पूरा लोकेशन ले लिया कि कहाँ पे इन्फॉर्मेशन, कहाँ पे लोकेशन है हमारे मूवमेंट, जिस पार्ट बॉडी पार्ट का मूवमेंट करवाना है उसका लोकेशन क्या है। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन जो होती है वो फिर से उनके रिस्पेक्टिव एरियाज में भेज दिया जाता है। मतलब यहाँ से फिर इन्फॉर्मेशन वापस सप्लीमेंट्री एसोसिएशन एरिया एंड प्री मोटर कॉर्टेक्स एंड द प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स एंड सोमेटोसेंसरी एरियाज के अंदर ये इन्फॉर्मेशन वापस क्या हो जाती है, चली जाती है। सो इन्फॉर्मेशन यहाँ से आई थी और यहाँ पे प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन भी आई, यहाँ पे प्लानिंग एंड द प्रोग्रामिंग ऑफ द मूवमेंट हुआ, दैट इज द बेसल गैंग्लिया थैलेमस के अंदर, और फिर वापस इन्फॉर्मेशन जो हो गई वो रेस्पेक्टिव एरियाज में चली गई। रेस्पेक्टिव एरियाज में इन्फॉर्मेशन जानने के बाद वहाँ से जो न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिसेंडिंग ट्रैक, दैट इज द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो बना देते हैं। मतलब यहाँ से इन्फॉर्मेशन फिर डिसेंडिंग ट्रैक के थ्रू नीचे की तरफ चली जाती है, दैट इज सप्लीमेंट्री एसोसिएशन एरिया से जो न्यूरॉन होंगे वो चले जाएंगे नीचे, जो प्री मोटर कॉर्टेक्स से न्यूरॉन जो होंगे वो सब कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट को फॉर्म करेंगे, जो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स के जो न्यूरॉन्स होंगे वो भी कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट को कंस्टिट्यूट करेंगे, और जो सोमेटोसेंसरी एसोसिएशन एरियाज और सोमेटोसेंसरी एरियाज के जो न्यूरॉन्स होंगे वो भी कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स बनाएंगे, और ये सारे फाइबर्स मिलकर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स बनाते थे जो कि इन्फॉर्मेशन को नीचे की तरफ रिले करते हैं। सो ये हमने पढ़ा कि डिफरेंट एरियाज ऑफ द ब्रेन कैसे होता है और ये डिफरेंट एरियाज ऑफ द ब्रेन में कैसे ट्रांसमिशन होता है इन्फॉर्मेशन का, कौन सा पाथवे फॉलो करता है, ये हमने देख लिया। नाउ सेकंड पार्ट सब टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। कमिंग टू द प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, सबसे पहले हम लोग इसको डायग्राम से देखते हैं कि प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स का लोकेशन कहाँ होता है। प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, दिस येलो कलर रीजन इज द प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स विच इज रिप्रेजेंटेड बाय M1 एंड इट इज इंक्लूडेड इन द ब्रॉडमैन्स एरिया 4। ब्रॉडमैन्स एरिया 4 के अंदर ये प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स आता है। ये जो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स होता है, जस्ट ये जो सेंट्रल सल्कस था जिसने फ्रंटल लोब को पैराइटल लोब से अलग किया था, ये जो डीप सल्कस था जिसका नाम था सेंट्रल सल्कस, इस सेंट्रल सल्कस के जस्ट एंटीरियरली जो लोब प्रेजेंट होता है, जो एरिया प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग कहते हैं M1, दैट इज प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। सो दिस एरिया इज नोन एज द प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। तो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स के बारे में हम लोग समझते हैं कि प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स ब्रॉडमैन्स एरिया 4 को इंक्लूड करता है। इट लाइज इन द प्री सेंट्रल गायरस एंड ऑन द एंटीरियर पैरासेंट्रल लोब्यूल ऑन द मीडियल सरफेस ऑफ द ब्रेन। तो ये प्री सेंट्रल गायरस में प्रेजेंट होता है, दैट इज सेंट्रल सल्कस के जस्ट आगे जो गायरस प्रेजेंट रहता है, दैट इज प्री सेंट्रल गायरस, उसके अंदर इसका लोकेशन होता है। एंड ऑन द एंटीरियर पैरासेंट्रल लोब्यूल ऑन द मीडियल सरफेस ऑफ द ब्रेन, जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर, 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं, उसका जो मीडियल सरफेस होता है, उस मीडियल सरफेस के पैरासेंट्रल लोब्यूल के अंदर इसका लोकेशन होता है। It is located in first convolution of the frontal lobes anterior to the central sulcus. We know anterior to the central sulcus जो first convolution of the frontal lobe है उसके अंदर ये present होता है. This is the central sulcus and this is the central sulcus and this is the first convolution. जो first convolution है frontal lobe का anterior to the central sulcus, यहाँ पे इसका location होता है. It begins laterally in the sylvian fissure and then extends to the superiorly to the uppermost portion of the brain and then dips into the longitudinal fissure. ये क्या होता है कि सबसे पहले ये क्या होता है कि जैसे बिगिन करता है लेटरली, जैसे ये था हमारा सिल्वियन सल्कस, तो यहाँ पे लेटरली ये बिगिन करता है, फिर ये एक्सटेंड करता है सुपीरियरली टू द अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन, और फिर ये लॉन्गिट्यूडनल फिशर में जाकर के क्या कर जाता है, डिप कर जाता है। लॉन्गिट्यूडनल फिशर वो फिशर था वो फिशर होता है जो कि 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स को अलग करता है। तो ये लेटरल साइड ऑफ द 1 सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, तो लेटरल साइड ऑफ द 1 सेरेब्रल हेमिस्फीयर के सिल्वियन फिशर से ये क्या करता है, एक्सटेंड करना शुरू करता है। ऊपर जाकर के ये क्या करता है कि एपेक्स में जाकर के अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन तक जाता है और फिर लॉन्गिट्यूडनल फिशर में डिप कर जाता है। सो ये था इसका लोकेशन की कहाँ पे ये प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है। नाउ कमिंग टू द इसके अंदर कौन सी न्यूरोनल लेयर प्रेजेंट होती है, हमने टोटल 6 न्यूरोनल लेयर्स पढ़े थे जो कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होता है। उसमें से जो लेयर 5 होता है, लेयर 5 इज द डिस्टिंक्टिव न्यूरोनल लेयर विच ऑल्सो कंटेन्स द जिएंट बेड सेल्स। ठीक है, तो लेयर 5 जो होता है वो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स का डिस्टिंक्टिव न्यूरोनल लेयर होता है। इसके अंदर लेयर 5 जो होता है इसके अंदर डेफिनेट लेयर प्रेजेंट होता है, जो कि जिसके अंदर कुछ जायंट बेड सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। नाउ इट कंट्रीब्यूट्स टू द 30% ऑफ द फाइबर्स ऑफ द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। हमने पढ़ा है कि कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के 30% फाइबर्स को ये कंट्रीब्यूट करते हैं। नाउ कमिंग टू द होमंक्लस रिप्रेजेंटेशन ऑफ और द टोपोग्राफिकल मैप। This is the homunculus representation or the topographical map and of primary motor area. So it is a section of the primary motor area. यहाँ पे हमने section लिया है primary motor area का। इस section of the primary motor area में हम लोग homunculus representation देखते हैं, मतलब different areas of the body में कैसे सप्लाई होता है और उनका जो सप्लाई होता है वो कौन से एरियाज को कवर करता है। जैसे टोज जो होता है वो सबसे मीडियली प्रेजेंट होता है, एंकल, फिर आता है नी, हिप,
ट्रंक, रिस्ट, हैंड, फिंगर्स, थंब, नेक, आई, फेस, वोकलाइजेशन, जॉ एंड टंग। तो हमें ये समझ में आता है कि जो फेस एंड माउथ जो होते हैं वो लेटरली प्रेजेंट होते हैं, नियर सिल्वियन सल्कस प्रेजेंट होंगे। जो फेस एंड माउथ होंगे, आउटलाइन ऑफ द मैप अगर हम लोग देखें तो हमें ये समझ में आता है कि जो फेस एंड माउथ होगा वो लेटरली प्रेजेंट होगा नियर सिल्वियन सल्कस। जो आर्म एंड हैंड होंगे, ये जो आर्म एंड हैंड है ये मिड पोर्शन में प्रेजेंट होगा। जो ट्रंक होगा, दिस इज द ट्रंक, दिस इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द एपेक्स और मीडियली प्रेजेंट होगा। और ये जो लेग और फुट होगा, जो लेग और फुट होगा डिप्स इन द लॉन्गिट्यूडनल फिशर इन द एंटीरियर पैरासेंटर लोब। तो वी नो दैट जो ये जो पूरा का पूरा एरिया होता है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स का, ये एरिया कैसे होता है कि लेटरली ये बिगिन करता है और जाकर के फिर डिप कर जाता है कहाँ पे, सेरेब्रल हेमिस्फीयर लॉन्गिट्यूडनल फिशर के अंदर। तो सिंपल सी बात है कि जो लेटरली प्रेजेंट होगा, लेटरल एरियाज जो होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे फेस एंड माउथ को मोटर सिग्नल्स प्रोवाइड करने के। आर्म एंड हैंड को जो सप्लाई करेंगे मोटर सिग्नल्स वो मिड पोर्शन के एरिया होंगे। जो ट्रंक होंगे, जो ट्रंक को सप्लाई करेंगे वो एपेक्स और मीडियली वाले एरिया होंगे। और लेग एंड फुट को जो सप्लाई करेंगे वो एरिया होंगे जो कि डिप्स इन द लॉन्गिट्यूडनल फिशर इन द एंटीरियर पैरासेंट्रल lobule. So this is the homunculus representation or the topographical map of the primary sensory cortex, sorry primary motor cortex. Now हम लोग देखते हैं कि ये जो पूरा का पूरा होम्युंकुलस रिप्रेजेंटेशन है, इसमें हम लोग को समझ में आएगा जो मसल्स ऑफ द हैंड होता है प्लस स्पीच होता है, ये दोनों मिलकर के हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द प्राइमरी मोटर एरिया को इंक्लूड कर ले रहा है। इस एरिया के अंदर देखते हैं कि ये जो पूरा का पूरा हैंड है और ये पूरा का पूरा स्पीच है, ये पूरा का पूरा कम से कम आधा जो है, आधा पूरा का पूरा एरिया को ये कवर कर ले रहा है। सो दिस मसल्स ऑफ द हैंड एंड स्पीच, इट इंक्लूड्स द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द प्राइमरी मोटर एरिया। नाउ there is a note that this representation does not mean that all nerves to the specific muscle is present in a specific area. This map only shows that a specific body part is assigned to a specific area, which means इसका मतलब ये नहीं होता है कि किसी एक एरिया, कोई एक एरिया मान लीजिए कि ये एरिया है हैंड के लिए, हैंड के मोटर सिग्नल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है और हैंड में दो तरह की मसल्स प्रेजेंट है लाइक बाइसेप्स ब्रेकाई एंड ट्राइसेप्स ब्रेकाई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी एक स्पेसिफिक एरिया से जो नर्व निकलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ बाइसेप्स ब्रेकाई को सप्लाई करेंगे और जो एक स्पेसिफिक एरिया से जो सारे नर्व निकलेंगे वो ट्राइसेप्स ब्रेकाई को सप्लाई करेंगे। जी नहीं, एरिया ऑफ द हैंड मतलब ये जो नर्व्स हैं इनके अंदर नर्व्स का रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह का हो सकता है कि बाइसेप्स ब्रेकाई के एक नर्व यहाँ से आ रहा हो और एक नर्व यहाँ से आ रहा हो, ट्राइसेप्स ब्रेकाई के लिए एक नर्व यहाँ से आ रहा हो और एक नर्व यहाँ से आ रहा हो। देयर इज अ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। ये पूरा का पूरा एरिया हैंड के मोटर सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन स्पेसिफिकली हम लोग कहें कि ये मतलब उसके अंदर भी कोई स्पेसिफिक एरिया हम लोग डिनोट करें कि ये स्पेसिफिक एरिया जो होगा वो सारे के सारे नर्व सप्लाई करेगा किसी एक स्पेसिफिक मसल को, तो ऐसा नहीं होता है। मतलब एक नर्व इसका, इस मसल का एक नर्व यहाँ से है तो हो सकता है कि वो दूसरे जगह से भी आ रहा हो, उसी एरिया के दूसरे जगह से भी आ रहा हो। सो व्हाट वी से दैट दिस रिप्रेजेंटेशन डज नॉट मीन्स दैट ऑल नर्व्स टू द स्पेसिफिक मसल इज प्रेजेंट इन ए स्पेसिफिक एरिया। स्पेसिफिक एरिया में ही प्रेजेंट हो उस स्पेसिफिक मसल की सारी नर्व्स, ये जरूरी नहीं है। दिस मैप ओनली शोज दैट अ स्पेसिफिक बॉडी पार्ट इज असाइंड टू ए स्पेसिफिक एरिया। बस ये बता दें कि एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट जो होता है उसको एक स्पेसिफिक एरिया असाइन किया गया है। सो दिस इज द homunculus representation of the primary motor area. Now coming to the functions of the primary motor area. The function of the primary motor area includes that when a least amount of the electric current is given, ठीक है ना, कभी किसी भी एरिया ऑफ द ब्रेन के फंक्शंस को समझने के लिए हमें उसको स्टिमुलस देना पड़ता है। तो लीस्ट अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट का रिक्वायरमेंट होता है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करने के लिए। जब ये स्टिमुलेट होता है तो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स स्टिमुलेट होता है। प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स के स्टिमुलेट होने से फिर वो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स जो होता है वो न्यूरॉन्स सेंड करता है। ये न्यूरॉन्स पहुंचते हैं अल्फा मोटर न्यूरॉन के पास। अल्फा मोटर न्यूरॉन जो होते हैं ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ये लोअर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। ये अल्फा मोटर न्यूरॉन जो होते हैं वो एलिसिट करते हैं सिंपल मूवमेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल बॉडी पार्ट्स। सो अल्टीमेट फंक्शन ऑफ द प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स क्या होता है? सिंपल मूवमेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल बॉडी पार्ट्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एरिया, दैट इज द प्री मोटर एरिया। Coming to the premotor area extends from the sylvian fissure to the superior longitudinal fissure. This is the diagram of the premotor area. Premotor area जो होता है वो sylvian fissure से लेकर के extend करता है longitudinal fissure तक। longitudinal fissure जो कि दो cerebral hemisphere को अलग करता है। तो sylvian fissure से लेकर के और पूरा longitudinal fissure तक जो extend करता है, इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? premotor cortex कहते हैं। So premotor area extends from the sylvian fissure to the superior longitudinal fissure. Now the homunculus representation or the topographical map of this area is almost similar to the primary motor area. So primary motor area का जैसा homunculus representation था वैसा ही इसी का होता है almost. It contributes to the 29% of the corticospinal tracts along with
सप्लीमेंट्री एसोसिएशन एरिया के साथ मिल करके ये 29% ऑफ द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स को कंट्रीब्यूट करता है। एंड दिस सेंड्स न्यूरॉन टू द प्राइमरी मोटर एरिया एज वेल एज द स्पाइनल कॉर्ड। ये प्राइमरी मोटर एरिया एज वेल एज स्पाइनल कॉर्ड दोनों को न्यूरॉन सेंड करता है। इसका हम लोग थोड़ा सा पाथवे को देखेंगे कि प्री मोटर एरिया से कैसे कनेक्टेड होता है। तो प्री मोटर एरिया जो होता है, इसके जो दो पार्ट्स होते हैं, प्री मोटर एरिया का एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट। ये जो प्री मोटर कॉर्टेक्स होता है उसका जो एंटीरियर पार्ट होता है वो एक मोटर इमेज को डेवलप करता है। ये जो मोटर इमेज होता है, ये मोटर इमेज जो होता है वो जाता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द प्री मोटर कॉर्टेक्स में, और यहाँ पे इमेज एक्साइट्स ईच सक्सेसिव पैटर्न ऑफ द मसल। इमेज जो होता है वो हर एक सक्सेसिव पैटर्न ऑफ द मसल्स को क्या करता है, एक्साइट करने का काम करता है। अब यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन होता है वो इन्फॉर्मेशन जो पाथवे को फॉलो करता है, ये इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली M1 में जा सकता है, M1 दैट इज प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में जा सकता है, या फिर बेसल गैंग्लिया और थैलेमस में जा करके और उसके बाद फिर प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में जा सकता है। और फिर यहाँ से इन्फॉर्मेशन जो होता है वो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, और इन्फॉर्मेशन इसके अंदर जो होता है वो ब्रेन स्टेम रेटिकुलर फॉर्मेशन में जाता है, जो कि फिर फाइनली जा करके एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स बनाता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकला है दैट इज पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द प्री मोटर कॉर्टेक्स से जो इन्फॉर्मेशन निकलता है ये डिफरेंट पाथवेज को फॉलो करता है। या तो वो डायरेक्टली M1 में जाएगा दैट इज प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में जाएगा, और प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से इन्फॉर्मेशन जो होगा वो परफॉर्म करेगा स्पेसिफिक मूवमेंट को जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के थ्रू, या तो बेसल गैंग्लिया एंड थैलेमस में जाएगा और वहां से प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में जाएगा और फिर एक स्पेसिफिक मूवमेंट को परफॉर्म करेगा, और या तो डायरेक्टली कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, और या तो फिर ब्रेन स्टेम रेटिकुलर फॉर्मेशन में जाएगा। तो ये प्री मोटर कॉर्टेक्स जो होता है वो ऐसे पाथवे फॉलो करता है कि सबसे पहले उसके एंटीरियर पार्ट में मोटर इमेज बनेगा जो कि उसके पोस्टीरियर पार्ट में जाएगा, और वहां से इन्फॉर्मेशन जो होगी वो डिफरेंट पाथवेज में ट्रैवल करेगी। अब टोटल अल्टीमेट फंक्शन क्या होता है प्री मोटर कॉर्टेक्स का, कि प्री मोटर कॉर्टेक्स अल्टीमेटली फंक्शन क्या करता है। तो वंस अगेन अगर हमें फंक्शन जानना है तो हमें उसको स्टिमुलस प्रोवाइड करना होगा। जब हमें प्री मोटर एरिया को एक स्पेसिफिक स्टिमुलस दिया तो उसको स्टिमुलेट करने में हमें हायर अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट का रिक्वायरमेंट लगा। तो हायर अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट से जब हमने स्टिमुलेट किया प्री मोटर कॉर्टेक्स को, तो हमने देखा कि प्री मोटर कॉर्टेक्स जो होते हैं वो न्यूरॉन सेंड करते हैं अल्फा मोटर न्यूरॉन को, और ये अल्फा मोटर न्यूरॉन ने क्या किया, कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ द मूवमेंट्स और सिलेक्शन ऑफ द एप्रोप्रिएट मोटर प्लान्स। तो ये जो दो चीजें होती हैं ये मेन फंक्शंस ऑफ द प्री मोटर एरिया होती है, दैट इज द कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ द मूवमेंट्स एंड सिलेक्शन ऑफ द एप्रोप्रिएट मोटर प्लान्स। कौन से मोटर प्लान्स करना है इसका सिलेक्शन बेस्ड ऑन द विजुअल स्टिमुलस एंड एब्स्ट्रैक्ट एसोसिएशन। मतलब हमारे जो विजुअल इंफॉर्मेशन है जो कि हमारा विजुअल स्टिमुलस होता है, जो हम लोग देख करके जो स्टिमुलस लेते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट एसोसिएशन होता है, इसके एब्स्ट्रैक्ट एसोसिएशन होता है जो एसोसिएशन एरिया से जो एब्स्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन आते हैं उनकी बेसिस पे सिलेक्शन हुआ एप्रोप्रिएट मोटर प्लान्स के कि हमें ये मोटर प्लान को एग्जीक्यूट करना है। और उसके बाद ये जो सिलेक्शन हुआ मोटर प्लान्स का, इसका एग्जीक्यूशन हुआ किसमें, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में। फिर ये मोटर प्लान जो कि प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स के पास गया और उसने क्या कर दिया, प्लान एग्जीक्यूट कर दिया। लेकिन और प्लान एग्जीक्यूट कर दिया तो ये सिंपल प्लान्स थे। जो कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ द मूवमेंट्स होते हैं ये डायरेक्टली कौन रेगुलेट करता है, ये डायरेक्टली रेगुलेट करता है प्री मोटर एरिया। सो प्री मोटर एरिया का मेन दो काम होता है, कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ द मूवमेंट और सिलेक्शन ऑफ द एप्रोप्रिएट मोटर प्लान्स, कि कौन सा एप्रोप्रिएट मोटर प्लान होगा किसी एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए। Now the next part we are going to start is the supplementary association area. Coming to the supplementary association area, supplementary association area जो कि ब्रॉडमैन्स एरिया 6 के अंदर आता है, it lies mainly in longitudinal fissure but extends to a small extent onto the superior frontal cortex. तो ये सप्लीमेंट्री एसोसिएशन एरिया है, दिस इज द सप्लीमेंट्री एसोसिएशन एरिया। ये सप्लीमेंट्री एसोसिएशन एरिया जो होता है वो मेनली लॉन्गिट्यूडनल फिशर में प्रेजेंट होता है। मतलब ये जो लॉन्गिट्यूडनल फिशर होगा जो कि दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर को अलग कर रहा है, मेनली ये लॉन्गिट्यूडनल फिशर में ही प्रेजेंट होता है, बट स्मॉल एक्सटेंट में ये सुपीरियर फ्रंटल कॉर्टेक्स में भी प्रेजेंट होता है। तो मेनली तो लॉन्गिट्यूडनल फिशर में प्रेजेंट होगा और स्मॉल एक्सटेंट में ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, सुपीरियर फ्रंटल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होगा। फिर हम लोग कहते हैं कि इट कंट्रीब्यूट्स 29% ऑफ द कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स अलॉन्ग विद द प्री मोटर कॉर्टेक्स। प्री मोटर कॉर्टेक्स और सप्लीमेंट्री एसोसिएशन एरिया मिलकर के 29% ऑफ द कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स बनाता है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। एंड द होमंकुलस रिप्रेजेंटेशन इज नॉट वेरी क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल एज इन द केस ऑफ प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स एंड द प्री मोटर एरिया। यहाँ पे इतना क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल होमंकुलस रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। नाउ कमिंग टू द फंक्शंस ऑफ द सप्लीमेंट्री एसोसिएशन एरिया। द फंक्शंस ऑफ द सप्लीमेंट्री एसोसिएशन एरिया, किसी भी एरिया के फंक्शन को हम लोग को समझने के लिए हमें उसे इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट करना पड़ता है।
यहाँ पे सोमेटोसेंसरी, यहाँ पे सप्लीमेंट्री एसोसिएशन एरिया को स्टिमुलेट करने के लिए हमें हायर अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक स्टिमुलस की रिक्वायरमेंट पड़ी। जब हमने ये स्टिमुलेट किया तो सप्लीमेंट्री एसोसिएशन एरिया स्टिमुलेट हुआ, इसने न्यूरॉन सेंड किया अल्फा मोटर न्यूरॉन को, और अल्फा मोटर न्यूरॉन जो होता है वो एलिसिट करता है, वो डिफरेंट फंक्शंस को एलिसिट करता है। क्या क्या फंक्शन होते हैं जो कि सप्लीमेंट्री एसोसिएशन एरिया परफॉर्म करता है? सबसे पहला फंक्शन होता है कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ द मूवमेंट। कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ द मूवमेंट जो था वो प्री मोटर कॉर्टेक्स का भी काम होता है और सप्लीमेंट्री एसोसिएशन एरिया का भी काम होता है। नेक्स्ट फंक्शन इज ऑर्गेनाइजिंग एंड द प्लानिंग ऑफ मोटर सीक्वेंसेस। जो मोटर एक्शन कौन कौन से सीक्वेंसेस में होंगे इनको ऑर्गेनाइज करना और इनको प्लान करना, इसका ये किसका काम होता है? सप्लीमेंट्री एसोसिएशन एरिया। नेक्स्ट इसका फंक्शन होता है सिलेक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मोटर प्लान्स बेस्ड ऑन द रिमेंबर्ड सीक्वेंस ऑफ द मूवमेंट्स। मतलब सिलेक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मोटर प्लान्स जो था, जो कि बेस्ड ऑन द विजुअल इनपुट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट एसोसिएशन, वो हुआ था किसके अंदर? प्री मोटर कॉर्टेक्स के अंदर। पर सप्लीमेंट्री एसोसिएशन एरिया का काम जो होता है, ये जो सिलेक्शन करता है मोटर प्लान्स का, वो बेस्ड ऑन द रिमेंबर्ड मूवमेंट ऑफ द रिमेंबर्ड सीक्वेंस ऑफ द मूवमेंट। जो भी मोटर स्किल्स हम लोग अटेन करते हैं, वो रिमेंबर करते हैं हम लोग, और उन रिमेंबर्ड मोटर स्किल्स, उन रिमेंबर्ड सीक्वेंस ऑफ द मूवमेंट्स के बेसिस पे सिलेक्शन करता है ये मोटर प्लान्स का। और ये मोटर प्लान्स को फिर एग्जीक्यूट कौन करते हैं? इट इज एग्जीक्यूशन बाय द प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। फिर प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो दीज आर द फंक्शन ऑफ द सप्लीमेंट्री एसोसिएशन एरिया। और भी फंक्शन होते हैं, लाइक इट कोऑर्डिनेट्स द बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्शन। एग्जाम्पल, इट कोऑर्डिनेट्स द बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्शन। एग्जाम्पल, बाइलेटरल ग्रास्पिंग मूवमेंट ऑफ बोथ हैंड्स साइमल्टेनियसली। जैसे हम लोग जब रोप क्लाइंब करते हैं, रस्सी चढ़ते हैं, तो दोनों हाथ के कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। ये जो कोऑर्डिनेटेड बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये सप्लीमेंट्री एसोसिएशन एरिया प्रोवाइड करता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ द मोटर कॉर्टेक्स, कुछ और स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ द मोटर कॉर्टेक्स, जैसे ब्रोकाज एरिया। ये सारे एरियाज को हम लोग फर्दर वीडियोस के अंदर और अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग ओवरव्यू देखते हैं। तो ब्रोकाज एरिया जो होता है वो प्री मोटर एरिया के अंदर लोकेटेड होता है। इट इज़ द मोटर स्पीच एरिया। It lies immediately anterior to M1, that is primary motor cortex, and immediately above the Sylvian fissure. So इसका जो लोकेशन होगा M1 के जस्ट आगे यहाँ पे कहीं, और हम लोग कहते हैं कि सिल्वियन फिशर के जस्ट ऊपर, मतलब प्री मोटर एरिया में कहीं पे ये प्रेजेंट होगा, ये ब्रोकाज एरिया प्रेजेंट होगा। ये कहीं ना कहीं यहाँ पे लोकेशन होगा ब्रोकाज एरिया का। सो ब्रोकाज एरिया इसलिए लिखा था कि ब्रोकाज एरिया इज लोकेटेड इन द प्री मोटर एरिया। नाउ डैमेज, अगर ब्रोकाज एरिया का डैमेज हो जाता है तो इट लीड्स टू द ब्रोकाज एफेजिया। ब्रोकाज एफेजिया का फीचर क्या होता है कि वोकलाइजेशन इसके अंदर अनअफेक्टेड, वोकलाइजेशन को कोई इफेक्ट नहीं होता है। मतलब वो बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब वो उसके आवाज़ में कोई दिक्कत नहीं होगा, वो बोल तो सकता है, बट देयर इज एन अनकोऑर्डिनेटेड अटरेंस एंड द यूज ऑफ सम कॉमन ओकेजनल वर्ड्स लाइक येस, नो, मतलब वो बोलेगा तो ठीक, मतलब वो तो बोल तो सकता है, लेकिन वो कोऑर्डिनेटेड वे में नहीं बोल पाएगा, अनकोऑर्डिनेटेड वे में बोलेगा। मतलब उनके वर्ड्स के बीच में रिजेम्बलेंस नहीं होगा, और वर्ड्स जो भी वो बोलेगा उसके बीच में कुछ कॉमन वर्ड्स का बार बार यूज़ करेगा, जैसे येस, नो, इस तरह के यूजेस को वो इस तरह के वर्ड्स को वो बहुत ज़्यादा यूज़ करेगा सेंटेंसेस के बीच में। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं दूसरे एरियाज लाइक वॉलंटरी आई मूवमेंट फील्ड के एरिया होते हैं। ये भी प्री मोटर एरिया में लोकेटेड होते हैं। ये भी मोटर विजुअल फील्ड एरिया होते हैं, मतलब कि विजुअल आउटपुट्स, जो कि मोटर विजुअल आउटपुट्स होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दीज लाइज इमीडिएटली अबव द ब्रोकाज एरिया। सिंपल सी बात है, ब्रोकाज एरिया की इमीडिएटली अबव है, दैट इज प्री मोटर एरिया में है। एंड डैमेज ऑफ दिस एरिया अफेक्ट्स द वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द आई टुवर्ड्स द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की तरफ देखना, वॉलंटरली देखना, इसको अगर ये एरिया डैमेज हो जाएगा तो वॉलंटरली हम लोग डिफरेंट एरियाज की तरफ नहीं देख पाएंगे। नेक्स्ट एरियाज ऑफ द हेड रोटेशन, एरियाज ऑफ द हैंड स्किल्स, ये सब भी इस एरियाज के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। मतलब सबसे नीचे ब्रोकाज एरिया प्रेजेंट होता है, मतलब यहाँ पे कहीं पे ब्रोकाज एरिया प्रेजेंट होगा, ब्रोकाज एरिया के ऊपर वॉलंटरली आई मूवमेंट फील्ड प्रेजेंट होगा। उसके बाद फिर हम लोग कहते हैं कि एरिया ऑफ द हेड रोटेशन प्रेजेंट होगा और एरिया ऑफ द हैंड स्किल्स प्रेजेंट होगा। तो ये सारे के सारे एरियाज जो होते हैं वो लाइनअप में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट एरियाज। नाउ वी आर एलिजिबल टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, कि एक्चुअल कॉर्टिकोस्पाइनल पाथवे होता क्या है। Coming to the descending tracts, there are total two types of the descending tracts, the pyramidal or corticospinal tracts and extrapyramidal or subcortical tracts. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पिरामिडल और कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, जिसके अंदर आता है एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट एंड लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। ये दोनों मिलकर के बनाते हैं कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स। एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स का कंट्रीब्यूशन होता है 20% और लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट का कंट्रीब्यूशन होता है 80%। दिस एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट और वेंट्रल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट भी हम लोग इसको कहते हैं।
ये जो एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट या फिर वेंट्रल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है, ये एक्सियल मस्कुलेचर को मोटर सप्लाई करने का काम करता है। एक्सियल मस्कुलेचर मतलब जो हमारे बॉडी के एक्सेस पे प्रेजेंट है मसल्स, उनको मोटर सप्लाई करता है। जबकि ये जो लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है वो डिस्टल लिम्ब मस्कुलेचर को मोटर सप्लाई करता है, दैट इज द पेरिफेरी ऑफ द बॉडी में जो मसल्स प्रेजेंट है उनको मोटर सप्लाई करने का काम करता है। नाउ कमिंग टू द एक्स्ट्रा पिरामिडल और सब कॉर्टिकल ट्रैक्ट, जो कि हम लोग फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर आता है रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट, रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट्स, ओलिवियोस्पाइनल ट्रैक्ट्स एंड वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्ट। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पिरामिडल ट्रैक्ट्स। पिरामिडल ट्रैक्ट्स पढ़ने से पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे लोअर मोटर न्यूरॉन्स एंड अपर मोटर न्यूरॉन्स के बारे में कुछ बेसिक्स। ये पूरा का पूरा हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जिसमें ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है। ब्रेन से इन्फॉर्मेशन जो होती है, मोटर इन्फॉर्मेशन जो होती है, वो अपर मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू, दीज आर द अपर मोटर न्यूरॉन्स, ये इन्फॉर्मेशन अपर मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू आती है स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे। स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे आने के बाद ये जो लोअर मोटर न्यूरॉन्स के साथ जाकर के सिनेप्स करते हैं, दीज आर द लोअर मोटर न्यूरॉन्स, जिनके साथ जाकर के ये अपर मोटर न्यूरॉन्स सिनेप्स करते हैं। टोटल 2 टाइप्स ऑफ द लोअर मोटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती है, द अल्फा लोअर मोटर न्यूरॉन्स एंड द गामा लोअर मोटर न्यूरॉन्स। ये दोनों मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो मसल स्पिंडल में जाकर के टर्मिनेट करते हैं और उसको मोटर सप्लाई देने का काम करते हैं। अल्फा मोटर न्यूरॉन सप्लाई करता है एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स को, दैट इज द कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स को। दीज आर द एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स जो कि कॉन्ट्रैक्शन का काम करते हैं। जो गामा मोटर न्यूरॉन्स होते हैं ये सप्लाई करता है इंट्राफ्यूजल फाइबर्स को, दीज आर द इंट्राफ्यूजल फाइबर्स। इंट्राफ्यूजल फाइबर्स दोज आर न्यूक्लियर बैग एंड द न्यूक्लियर चेन फाइबर्स जो कि प्रोप्रियोसेप्शन का काम करते हैं। सो ये जो लोअर मोटर न्यूरॉन होते हैं, अल्फा मोटर न्यूरॉन और गामा मोटर न्यूरॉन, ये अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्शन और प्रोप्रियोसेप्शन का काम करते हैं किसी भी मसल के अंदर, ठीक है। सो दिस वाज कंप्लीटली अबाउट द अपर मोटर न्यूरॉन्स एंड लोअर मोटर न्यूरॉन्स। अब हम लोग पाथवे डिस्कस करेंगे कि कैसे ये कॉर्टिकोस्पाइनल पाथवे का मेन आउटलाइन होता है। कॉर्टिकोस्पाइनल पाथवे हम लोग डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन स्टार्ट होती है हमारी सेरेब्रल कॉर्टेक्स से, जो इन्फॉर्मेशन स्टार्ट होती है सेरेब्रल कॉर्टेक्स से, जो मोटर एरिया से इन्फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, ये इन्फॉर्मेशन कोरोना रेडिएटा के थ्रू, ये फैन लाइक जो प्रोजेक्शन है यहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रही है अंदर की तरफ, तो ये कोरोना रेडिएटा फैन लाइक स्ट्रक्चर है, इस वजह से इसको हम लोग कोरोना रेडिएटा कहते हैं इस स्ट्रक्चर को। तो यहाँ से क्या हुआ कि इन्फॉर्मेशन आ रही है, सारे के सारे नर्व से इन्फॉर्मेशन आ रही है। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट पार्ट समझ रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन आती है सबसे पहले पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ द इंटरनल कैप्सूल, दिस इज द थैलेमस एंड दिस इज द इंटरनल कैप्सूल। हमें पता है थैलेमस के लिटरली प्रेजेंट होता है इंटरनल कैप्सूल, सो दिस इज द इंटरनल कैप्सूल। तो ये इंटरनल कैप्सूल के पोस्टीरियर लिम्ब में ये इन्फॉर्मेशन आती है। फिर यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन जो होती है वो इंटरनल कैप्सूल से नीचे की तरफ डिसेंड करती है, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स के थ्रू नीचे की तरफ डिसेंड करती है। ये हमारा मिड ब्रेन का एरिया है, ये हमारा पोन्स का एरिया है और ये हमारा मेड्यूला का एरिया है, दिस इज द सेरेबेलम। मिड ब्रेन को सेरेबेलम से कनेक्ट करने का काम करता है सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल, पोन्स को सेरेबेलम से कनेक्ट करने का काम करता है मिडिल सेरेबेलर पेडंकल और मेड्यूला को सेरेबेलम से कनेक्ट करने का काम करता है इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल। अब जो इन्फॉर्मेशन आती है यहाँ से कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के थ्रू, सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन पोन्टाइन न्यूक्लियस में, पोन्स के अंदर कुछ न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग पोन्टाइन न्यूक्लियाई कहते हैं। पोन्टाइन न्यूक्लियाई में जब ये इन्फॉर्मेशन आती है उसके बाद पोन्टाइन न्यूक्लियाई से कुछ फाइबर्स ओरिजिनेट करते हैं। ये जो फाइबर्स होते हैं ये अपोजिट साइड के, ये फाइबर्स जैसे कि लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड के जो फाइबर्स होते हैं वो अपोजिट साइड में जा करके मिडिल सेरेब्रल पेडंकल के थ्रू सेरेबेलम में जाकर के टर्मिनेट करते हैं और यहाँ से प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन देने का काम करते हैं कि जो हम लोग मोटर एक्शन लेने वाले हैं उसका प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन ऐसा है, ये सेरेबेलम को पता चल जाता है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन आई जो कि पोन्टाइन न्यूक्लियाई में पहुंची, पोन्टाइन न्यूक्लियाई से कुछ न्यूरॉन्स जो थे वो अपोजिट साइड ऑफ द सेरेबेलम में गए थ्रू मिडिल सेरेबुलर पेडंकल। इसके बाद फिर हम लोग कहते हैं कि यहाँ से पोन्टाइन न्यूक्लियस से इन्फॉर्मेशन नीचे की तरफ जाती है। नीचे की तरफ आने के बाद ये जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट होते हैं इसमें से मेजॉरिटी ऑफ द फाइबर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, डिकसेट कर जाते हैं, दैट इज क्रॉस कर जाते हैं मेड्यूला के लेवल पे। मेड्यूला के लेवल पे मेजॉरिटी ऑफ द फाइबर्स का पिरामिडल डिकसेशन हो जाता है, दैट इज पिरामिड के लेवल पे इनका क्या हो जाता है, पिरामिड ऑफ द मेड्यूला के लेवल पे इनकी क्रॉसिंग हो जाती है। इस क्रॉसिंग की वजह से क्या होता है कि ये क्रॉस हो जाते हैं, क्रॉस करने के बाद अपोजिट साइड में पहुंचने के बाद ये फाइबर्स नीचे की तरफ डिसेंड करते हैं, दीज आर द लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स। ये लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के जो फाइबर्स होते हैं ये नीचे की तरफ डिसेंड करते हैं और लेटरल पार्ट ऑफ द वाइट मैटर के अंदर आने के बाद ये क्या करते हैं, एंटीरियर ग्रे हॉर्न में आते हैं। एंटीरियर ग्रे हॉर्न में आने के बाद जाकर के ये टर्मिनेट कर जाते हैं। एंटीरियर ग्रे हॉर्न में जाकर के टर्मिनेट करने के बाद यहाँ से क्या बिगिन होता है, लोअर मोटर न्यूरॉन्स का बिगिनिंग होता है। लोअर मोटर न्यूरॉन्स दैट इज अल्फा एंड गामा लोअर मोटर न्यूरॉन बिगिन होते हैं जो कि एक्स्ट्रा फ्यूजल और इंट्राफ्यूजल फाइबर्स को सप्लाई करते हैं। क्योंकि ये लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है और हमें पता है कि जो लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट होता है वो डिस्टल लिम्ब मस्कुलेचर को सप्लाई करता है, दैट इज पेरिफेरी ऑफ द बॉडी में जो मसल्स है उसको सप्लाई करेगा।
नाउ ये 80% ऑफ द फाइबर्स दैट इज मेजॉरिटी ऑफ द फाइबर्स जो थे उसने तो लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट बना दिया। माइनॉरिटी ऑफ द फाइबर दैट इज 20% ऑफ द फाइबर्स जो होते हैं वो नीचे की तरफ डिसेंड करते हैं, डायरेक्टली नीचे की तरफ डिसेंड करते हैं इप्सिलेटरली, कॉन्ट्रालेटरली नहीं जाते हैं, इप्सिलेटरली जाते हैं। इप्सिलेटरली नीचे जा करके और एंटीरियर वाइट हॉर्न में जाने के बाद ये क्या करते हैं, या एंटीरियर वाइट हॉर्न में जाने के बाद फिर इनका क्रॉसिंग होता है या फिर डिकसेशन होता है, जिसकी वजह से फिर ये अपोजिट पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं। तो लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट का जो डिकसेशन हुआ वो मेडुलरी पिरामिड के लेवल पे हुआ, और जो वेंट्रल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट था उनका जो डिकसेशन हुआ वो स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे हुआ, और वहाँ पे डिकसेट होने के बाद टर्मिनेट कर जाते हैं, और उसके बाद फिर अल्फा और गामा मोटर न्यूरॉन होते हैं जो कि मसल्स को सप्लाई करते हैं। और क्योंकि ये वेंट्रल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स हैं तो वेंट्रल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जो होते हैं वो एक्सियल मस्कुलेचर दैट इज हमारे एक्सेस ऑफ द बॉडी पे जो मसल्स प्रेजेंट है उनको सप्लाई करते हैं। सो दिस इज द ट्रैक्ट। इसी तरह हम लोग राइट साइड के ट्रैक्ट्स को समझते हैं। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जो थी वो डिफरेंट न्यूरॉन से आई, क्योंकि ये फैन लाइक प्रोजेक्शन है इस वजह से हम लोग इसको कोरोना रेडिएटा भी कहते हैं। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ द इंटरनल कैप्सूल के अंदर आई, फिर वहाँ से इन्फॉर्मेशन नीचे की तरफ गई पोंटाइन न्यूक्लियाई में। पोंटाइन न्यूक्लियाई से कुछ फाइबर्स ओरिजिनेट किए जो कि अपोजिट साइड ऑफ द सेरेबेलम में गए थ्रू द मिडिल सेरेबेलर पेडंकल, ताकि प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँच सके। उसके बाद फिर यहाँ से जो फाइबर्स ओरिजिनेट जो थे कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट फाइबर कंटिन्यू हुआ, ये यहाँ पे जाकर के 80% ऑफ द फाइबर जो गए वो लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट को फॉलो किया, और 20% ऑफ द फाइबर जो गए वो डायरेक्टली नीचे डिसेंड किए, वेंट्रल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट को फॉलो किए। जो लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के फाइबर्स थे वो नीचे की तरफ गए, लेटरल वाइट हॉर्न के अंदर जाने के बाद फिर लेटरल वाइट कॉलम के अंदर जाने के बाद वो कहाँ पे गए, एंटीरियर डे हॉर्न में गए। एंटीरियर डे हॉर्न में जाकर के ये टर्मिनेट किए, और यहाँ से फिर लोअर मोटर न्यूरॉन का बिगिनिंग हुआ दैट इज अल्फा एंड गामा मोटर न्यूरॉन, जिसने एक्स्ट्राफ्यूजल और इंट्राफ्यूजल फाइबर्स को सप्लाई किया। उसी तरह इसी तरह यहाँ के जो वेंट्रल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के फाइबर्स थे ये नीचे की तरफ आए, ये एंटीरियर वाइट कॉलम के अंदर जाने के बाद ये कॉन्ट्रालेटरली इन्होंने क्रॉस किया और वहाँ पे जाकर के टर्मिनेट करके अपोजिट पार्ट में ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में। फिर वहाँ से लोअर मोटर न्यूरॉन का बिगनिंग हुआ जो कि अल्फा और गामा फाइबर्स दिए, जो कि एक्स्ट्राफ्यूजल और इंट्राफ्यूजल फाइबर्स को सप्लाई करता है। सो अल्टीमेटली दिस वाज द कंप्लीट पाथवे कि कैसे कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट पाथवे फॉलो होता है, कैसे वो लेटरल और एंटीरियर या फिर वेंट्रल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट में डिवाइड होता है, और कैसे वो मसल्स को सप्लाई करता है। इसमें हम लोग एक कुछ येलो कलर के फाइबर्स, स्पेशल फाइबर्स को देखते हैं। ये जो स्पेशल फाइबर्स होते हैं ये 3% ऑफ द फाइबर्स होते हैं जो कि स्पेशल फाइबर्स होते हैं। इन स्पेशल फाइबर्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि कुछ जिएंट पिरामिडल सेल्स या फिर बेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं प्राइमरी मोटर एरिया में। ये जो सम जिएंट पिरामिडल सेल्स ऑफ द बेड सेल्स होते हैं प्राइमरी मोटर एरिया में, ये लार्ज माइलिनेटेड फाइबर्स को ओरिजिनेट करते हैं। ये लार्ज माइलिनेटेड फाइबर जो होते हैं इनका डायमीटर 16 माइक्रोमीटर होता है, जिसकी वजह से इनकी कंडक्शन वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है 70 मीटर पर सेकेंड, और ये 3% ऑफ द टोटल फाइबर्स होते हैं। इस वजह से ये मोस्ट रैपिड रेट ऑफ द ट्रांसमिशन शो करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि रेट ऑफ द ट्रांसमिशन बहुत ही ज़्यादा होता है कुछ फाइबर्स का, दैट इज 3% ऑफ द फाइबर्स का। So this was completely about the corticospinal tract, the pathway of the corticospinal tract. So हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिसेंडिंग ट्रैक्ट जो हो गया वो कंप्लीट कर लिया। नाउ हम लोग प्रैक्टिस सेशन इंक्लूड करेंगे। तो प्रैक्टिस सेशन के अंदर सबसे पहला सेशन होगा हमारा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। These are some subjective questions which are frequently asked in professional and terminal examination. The questions include: Question 1. Name all the ascending and descending tracts of the central nervous system. Second. Describe the primary motor cortex, premotor area and supplementary motor area. Third. Explain the location and the function of the Broca's area. Fourth. Describe the condition of the Broca's aphasia. And fifth. Differentiate between alpha and gamma motor neuron fibers. Sixth. Elaborate the pathway of the corticospinal tract or pyramidal tract. The answers to these questions have been discussed in this video. Coming to the question and answer on PG entrance examination. First question is, which is not an extrapyramidal tract? Option A, reticulospinal tract. Option B, reverospinal tract. Option C, corticospinal tract. And option D, tectospinal tract. This question was asked in AIPG 2015, AIPG 2014, AIPG 2013 and UPPG. So the answer to this question, which of the following is not an extrapyramidal tract? We know that the answer is corticospinal tract. Corticospinal tract is not an extrapyramidal tract. So the answer for question number 1 is C. Now coming to question number 2, the precentral gyrus and the corticospinal tract are essential for option A, olfaction, option A, vision, option B, olfaction, option C, auditory, and option D, voluntary movement. This question was asked in AIPG 2013 and AIPG.
So we know, now coming to the answer of this question, precentral gyrus and corticospinal tract. We know that the precentral gyrus and corticospinal tract are responsible for voluntary movement, the motor function, voluntary movement, not for vision, olfaction and auditory. So the answer for question number second is D. Now third question, which tract controls the skilled voluntary movements? This question was asked in DNB 2011. The options are A. Tectospinal tract, B. Lateral corticospinal tract, C. Rubrospinal tract, D. Reticulospinal tract. Coming to the answer of this question, voluntary movement, skilled voluntary movement is controlled by lateral corticospinal tract. So the answer for this question is B. Lateral corticospinal tract. Now coming to question number 4. The motor area for the Brodmann's is area. Option A 1, option B 4, option C 5 and option D 7. We know that, now coming, this question was asked in PGI PG. Coming to the answer of this question, we know that area 3, 1 and 2 are included in somatosensory area, area 5 and 7 are included in somatosensory association area, and area 4 is included in the motor area. So the answer for question number 4 is B, the motor, the B 4. Now coming to question number 5, main role of the basal ganglia. Option A, temperature regulation. Option B, planning and programming of the movement. Option C, gross motor activity. And option D, equilibrium. This question was asked in AIPG 2015. Coming to the answer of this question, we know the main role of the basal ganglia is planning and programming of the movement. All the information that comes from the different parts of the brain, the motor areas, comes in the basal ganglia and thalamus. Here the planning and the programming of the movement occurs, and the information is further relayed to the different areas. So the answer for question number 5 is B, planning and programming of the movement. Next question, that is the Broca's area situated in. Option A, superior temporal gyrus. Option B, inferior temporal gyrus. Option C, superior frontal gyrus. And option D, inferior frontal gyrus. This question was asked in AIPG, NEET PG 2013 and UPPG. Coming to the answer of this question, we know Broca's area is situated in the premotor area and the lower part of the premotor area. So it will be the inferior frontal gyrus. The answer for question number 6 is inferior frontal gyrus. Answer D. Now coming to the last question, the Broca's area for speech is for. Option A, integration of speech. Option B, motor part of the speech. Option C, sensory part of the speech. And option D, comprehension of the speech. This question was asked in NEET 2015. Coming to the answer of this question, Broca's area of the speech is located in the frontal lobe, and frontal lobe which is responsible for the motor areas. So the answer for question number 7 is the motor part of the speech. B, motor part of the speech. Now we will be including the clinical challenge question. Firstly, we will be discussing the clinical challenge question of the previous video. A 21-year-old person comes to you with a damage in a part of CNS. During examining, when you touch a specific part of the body, he responds to the touch, but he cannot localize the specific part of the body that has been touched. Which part of the central nervous system may have been damaged according to you as a first step for diagnosis? Option A was cerebral cortex, option B was thalamus, and option C was the spinal cord. Coming to the explanation of this answer, the explanation of this answer is the somatosensory association area 1. When in the somatosensory association area 1, हम लोग पढ़े थे कि जो थैलेमस के लेवल पे क्वालिटी एंड द इंटेंसिटी ऑफ द सेंसेशन लाइक पेन, टच, टेम्परेचर एंड प्रेशर को तो हम लोग रिसीव कर लेते हैं, लेकिन क्रिटिकल सेंसरी एनालिसिस लाइक वो उनका क्रिटिकल लोकलाइजेशन कहाँ है सेंसेशन का, ये हमें सोमेटोसेंसरी एरिया 1 में जा करके रिसीव होता है. तो लोकलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था सोमेटोसेंसरी एरिया 1, बट जबकि क्वालिटी और इंटेंसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल था थैलेमस और ब्रेन स्टेम्स. सो यहाँ पे अगर हम लोग कह रहे हैं कि टच, तो हमको पता चल गया कि टच है किसी स्पेसिफिक पार्ट में, किस स्पेसिफिक पार्ट में टच हुआ है ये हमें पता नहीं चल पाया, मतलब लोकलाइजेशन नहीं हो पा रहा है. अगर लोकलाइजेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब सेरेब्रल कॉर्टेक्स का डैमेज हुआ है, दैट इज सोमेटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया 1 का, सोमेटोसेंसरी एरिया 1 का डैमेज हुआ है. सो द आंसर फॉर द प्रीवियस क्लिनिकल चैलेंज क्वेश्चन इज ए, सेरेब्रल कॉर्टेक्स. Now the next clinical challenge question is that the two patients approaches you. The patient A is suffering from the complete hemiplegia, that is complete paralysis of one side of the body, that is one half of the body, and the patient B is suffering from the paralysis in specific muscle of the body. Which of the following neurons are affected in both A and B, upper motor neuron or lower motor neuron? Think for the answer. After uploading the answer in the next video, the link will be available in description below. If you like our videos, please subscribe.